Good morning, students. Asabri, good morning. Good morning, sir. Good morning, Shubham. Good morning. Yes, Good just a morning, minute. sir. Good morning to all of you. Okay. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 9. Okay. So good morning to each and everyone present here. Well, dear students, in our last live class that we had on Saturday. So we have almost completed chapter 1. Okay. And only the small portion of around 100 lines, we can say words, is left. Okay, so that I am leaving on you students because it was the conclusion of the chapter. Is it clear, Athar Salve? Athar? Sir. Okay, so whatever the portion was left, okay, it was a conclusion of the entire chapter. So all the things we have already discussed in that entire journey of the discussion on that chapter. So rest of the part I am leaving on you students, that the remaining portion of chapter 1 civics is to be covered by you. Okay. Still, if you will have any doubt, you are free to ask your doubts. Okay. Is it clear to all of you? Yes, sir. Good, students. Sir. So now just for this entire week, we will be doing the revision for our exam. Okay. So we are having our online assessment 1 commencing from 21st. Is it clear to each and every student? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So our online Yes. assessment is starting from 20. Is it 20? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Bhumika, did you get Yes, the sir. syllabus? Do you Yes, get the sir. syllabus? Very good. Can you tell me which are the chapters coming in online assessment 1? Sir, in geography, 2 chapters Chapter 1 and 2. and history, 1 chapter. And history 1 chapter. One. Okay. So we have covered the history chapter 1 recently. है ना? History chapter 1 अभी हमने cover sir. किया था. And it took long back to cover the geography. So first we'll try to do the revision in geography portion. Okay. And if the time Sir. left, it takes one. Yes, Hirak. Sir, map work will come in exam. Beta, map work is not coming in the exam. Okay, sir. Clear? Most of the map work activity we will do, okay, through our portfolio work, okay, but it takes some time. Got it? First we have to concentrate with the covering of our syllabus, the theoretical one. ठीक है? So अभी हम अपने theoretical subject को cover करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे. Later on we will go for remaining things. Okay? I think everything is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है. Yes, sir. So, shall we start the revision work? Yes, sir. Okay, well, Yes, sir. I think in this
discussion of around 3 to 4 minutes. Most of the students have already joined the class. Okay, so our first chapter is India size and location. Okay, now the first paragraph is just of a general introduction, है ना, कि India is one of the ancient civilization, and because of that we have multifaceted socio-economic progress. यानी पिछले 50 सालों में, 5 decade means last 5 years, in last 50 years, sorry गलती से मैंने 50 बोला, सॉरी 5 बोला, 5 decades means 50 years. So पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत सारा सोशल डेवलपमेंट भी किया है, एंड वी आल्सो हैड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक है, इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो इतना सारा प्रोग्रेस हमारे कंट्री में है. इंडिया हैज आल्सो contributed significantly to the making of world history. ठीक, संसार के इतिहास में भी इंडिया का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन. अभी ये बिल्कुल जनरल था, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन लोकेशन. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 27 minute east. Now इस चीज को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ये याद करने की चीज है. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, आपको क्लियर कट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, या एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Good. So lying entirely in the northern hemisphere. इंडिया किसमें है? Northern India lies in northern hemisphere. अब ध्यान से देखो, यदि आप लोगों को ध्यान हो, कार्तिकेय, अंजलि सिंह, पूजा विधाते, प्रतिश्रुता, आशीष NM, Who is Ashish? आशीष, वीडियो ऑन करो जरा. स्विच ऑन योर वीडियो आशीष. आशीष, वीडियो ऑन करो. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है. सर मी अच्छा, ओके, यू आर देयर. ठीक है, स्विच ऑन योर वीडियो, स्विच ऑफ योर वीडियो नाउ. वेल, ओके. सो यदि आप लोगों को ध्यान हो, कार्तिकेय. Yes, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग. चलिए, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जब हमने इंडिया का लोकेशन चैप्टर में डिस्कस किया था, वी डिस्कस इट कि इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, है ना. और एक चीज हमने पढ़ी थी क्या? ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ध्यान है? Yes, sir. गुड. चलिए, दिव्यांका, दिव्यांका, हाँ, वीडियो ऑन करो जरा.
ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करो। गुड। अभी तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जब हम बोलते हैं इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जब हम बोलते हैं इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो इन दोनों बातों का मतलब क्या है? India lies in northeast. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और है इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये दोनों बातों का मतलब क्या है? So the India lies in northeast. नो, इंडिया डज नॉट लाइज इन नॉर्थ ईस्ट। इसको प्रॉपर रेफरेंस के साथ बताओ। चलिए, नेहा यादव, योर टर्न इज ओवर। दिव्यांका, नेहा यादव, टेल द आंसर। नेहा यादव, who has joined with नेहा यादव? चलिए, प्रतिश्रुता, 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 साक्षी टनकर, साक्षी, धनश्री, yes Dhanshri, you are not audible. Yes, sir. What does it mean when we say India lies in northern hemisphere and India lies in eastern hemisphere? इसका मतलब क्या है? प्रतिश्रुता, वीडियो ऑन करो। Hello, sir. हाँ, प्रतिश्रुता is there? Yes, sir. It's me. हाँ, now tell the answer. What do we mean? India lies in northern hemisphere and India lies in eastern hemisphere. इसका मीनिंग Sir, क्या है? Sir, it means India lies in northern hemisphere in east side. In east side northern hemisphere. Yes, sir. हाँ, now all of you are wrong. ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, the map that I am showing right now. ठीक Sir, है? may I tell? Who speaks out? Sir, Savri. Sabri, good morning. Good morning, sir. अच्छा, डोसा खाए क्या सुबह से? No, sir. नाश्ता किसने किया? Sir, नहीं किया. अच्छा, ठीक है। देखो, प्रतिश्रुता तो डोसा और इडली खा के बैठी हुई है। हाँ, नाउ No, प्लीज sir. टेल। हाँ, यस सर, मेरे को मालूम है, मैं उधर से निकला था तो घर से खुशबू आए थे। चलो बेटा, हाँ सावरी, टेल द आंसर बेटा। Sir, it means that India lies above the equator and to the east of standard meridian. Very good. Okay, clap for her. All of you clap for her. 1, 2, 3, start. Good. अब ध्यान से देखो जरा। This is what? Equator. ये क्या है? Equator. Okay. So when we compare India
with the position of equator. Now India lies towards the north pole. इंडिया किसकी तरफ है? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में। यदि हम किससे कंपेयर करते हैं? इक्वेटर से। नाउ दिस इज व्हाट प्राइम मेरिडियन, ठीक है? ये ऊपर 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 ऊपर, ये देखो यहां से जा रहा है। Yes, sir. गुड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइम मेरिडियन। व्हाट इज दिस बेटा? Prime meridian. ठीक है। सो जब हम कहते हैं व्हेन वी से इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी हम इंडिया की पोजीशन किससे कंपेयर कर रहे हैं? इक्वेटर से कंपेयर कर रहे हैं। हम इंडिया की पोजीशन किससे कंपेयर कर रहे हैं? Equator. तो इक्वेटर के हिसाब से इंडिया कौन सी साइड में है? नॉर्दर्न, ठीक। और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से इंडिया कौन सी साइड में है? ईस्ट। अब ये जो इक्वेटर है, इसने इंडिया को वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो जो क्रिकेट बॉल की तरह गोल शेप होता है उसे स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Spear. ठीक है। तो वो जो स्फीयर है ना, तो स्फीयर को क्या कर दिया? 2 बराबर भागों में बांट दिया। स्फीयर को क्या कर दिया? Divided it into 2 parts. So it is called as what? Hemisphere. इसलिए उसको क्या कहेंगे? Hemisphere. समझ में आया? हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। इंडिया लाइज इन विच स्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? Northern hemisphere. Got it? अब same when we compare India with prime meridians, here it is the west direction, here it is east direction. Okay, so now in case of prime meridian, when we compare it with prime meridian, so India lies in which hemisphere? Eastern hemisphere. Eastern hemisphere. Got it, दिव्यांका? दिव्यांका बात समझ में आई? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो ये श्रुति शर्मा, बात समझ में आई बेटा? Sir. वेरी गुड, ठीक है। तो ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक। अब व्हाट इज बीइंग रिटन, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, नाउ द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लॉन्गिट्यूड क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक, तो इसके लिए फिर से आपको मैप देखना पड़ेगा। ना ध्यान से देखो, ये जो इक्वेटर है क्या है? Equator. इक्वेटर को हम बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? 0 degree latitude. और इस तरीके से इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न पोल की तरफ, किसकी तरफ? Northern pole. गुड, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर इस नॉर्दर्न पोल तक की जो टोटल डिस्टेंस है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर कितना? नॉर्दर्न पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसको टोटल 80 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स?
18. 80 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये हो गए 80 डिग्री, और चूंकि नॉर्दर्न पोल की साइड में है तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर के साउथ की तरफ भी कितने हैं? 80. 80। तो 80 और 80 टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए? 160. 160. वेरी गुड। अब सवाल ये है कि चौहान सर ने बोल दिया कि 80 लैटिट्यूड बनाए हैं, 80 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये किसी का माइक ऑन रह गया? When you need not to talk, switch off your mics. कावेरी, माइक बंद करो। कितने दिन हो गए लाइव क्लास ज्वाइन करते हुए? You are not able to join it properly. Take the help from someone. कावेरी, माइक बंद करो। Take help of your brother. Now okay. ठीक है, सार्थक, बात समझ में आ रही है? सार्थक वाघमारे, पूजा विधाते, पूजा, यस, किया रेड्डी, किया, किया रेड्डी, किया रेड्डी, यस, संध्या, Yes, sir. okay, because most of this strand didn't respond, so I thought कि again disconnection तो नहीं हो गया, but it is there. Well, so question ये है कि जब इस तरफ नॉर्थ में 80 लैटिट्यूड्स हैं और साउथ में भी 80 हैं, टोटल हमारे पास 160 लैटिट्यूड हो गए, तो यहाँ पर सारे के सारे लैटिट्यूड ड्रॉ करे हुए क्यों नहीं है? गौरव, Sir, Yes, sir. गौरव तिखर, हाँ आंसर बताओ। जब 80 लैटिट्यूड्स हैं तो ओनली 50 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री नॉर्थ, ओनली इतने लैटिट्यूड शो करे हुए हैं। ऐसा क्यों? Yes, They have Ranjini. shown only main longitude and latitude. That's why. We have shown only main latitude, but इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यदि आप कंसीडर करो 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 15 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में हमें और कितने लैटिट्यूड ड्रॉ करना पड़ेंगे? 14। कितना ड्रॉ करना पड़ेंगे? 14 है ना? यानी 0 डिग्री से लेकर नॉर्दर्न पोल तक, नॉर्थ पोल तक 80 लैटिट्यूड ड्रॉ होंगे। तो जब 80 लाइनें खींच देंगे, 80 लाइन्स, तो पूरा का पूरा ग्लोब ब्लैक हो जाएगा। ग्लोब में ओनली क्या दिखाई देंगी? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दिखाई देंगे, और बाकी के कंट्रीज शो करने का स्पेस नहीं रहेगा। भाई जब पूरा का पूरा काली काली लाइनें हो जाएंगी तो बाकी का जो कंट्री है, बाकी का एरिया तो दिखाई देगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं, ओनली जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब सवाल है कि इम्पोर्टेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसको क्या कर दिया, इस तरीके से 15-15 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब
इसी तरीके से क्या किया, जो मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस मतलब लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड्स को भी क्या किया, डिवाइड कर दिया। 15, 30, 45, 60, 75, 90, ओके, 105, 120, 135, 150। इसके बाद नेक्स्ट हो गया 165 और 180। यहां तक बात आई समझ में? गुड। अब जरा हमारे उस सेंटेंस पर आओ, लोकेशन। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ तो ओनली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड शो है ना? तो मेन लैंड मतलब ये जो येलो येलो में दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर में इंडिया दिखाई दे रहा है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेन लैंड ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये जो कन्याकुमारी का कोस्ट है, यहां से कोई ना कोई एक लैटिट्यूड पास हो रहा होगा। शुभम, यहां से कोई ना कोई एक लैटिट्यूड तो पास हो रहा है। तो उस लैटिट्यूड को, उस लैटिट्यूड का डिग्री कितना हो गया हमारे पास? 8 degree 4 minute north. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक, तो 0 से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, हम कहां पर आ गए? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। अब ऐसे करते करते ये लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या होगी? ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी। Yes, sir. ठीक, तो ये जो पोर्शन है कश्मीर में, बिल्कुल हमारा सबसे नॉर्थ की जगह, तो इसका डिग्री लैटिट्यूड हमारा कितना है? इसका डिग्री लैटिट्यूड है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चंदना वडस्कर, इतना समझ में आया? Yes, sir. गुड। ठीक, अब जैसे ये हमारा सबसे साउथ इंडिया में है ना, तो स्टार्टिंग लैटिट्यूड हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और इधर क्या हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब एन क्यों लगाया? क्योंकि ये लैटिट्यूड कौन से हेमिस्फीयर के हैं? Northern Northern hemisphere. इसलिए एन लगा हुआ है। तो इंडिया लैटिट्यूड के हिसाब से कौन से दो लैटिट्यूड के बीच में है? These two latitudes, है ना? Between 8 degree 4 minute northern latitude and 37 degree 6 minute northern latitude. इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. गुड। ठीक, अब हम आते हैं किस तरफ? लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो जैसे लैटिट्यूड के डिग्री पोजीशंस हैं, वैसे ही किसके हैं? लॉन्गिट्यूड्स के। तो ये जो हमारा कच्छ का रीजन है ना, ये हो गया हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल लास्ट में ये हो गया हमारा कौन सा? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर? तो जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कितना है? 68 degree 7 minute east. ईस्ट। तो ई क्यों लिखा? क्योंकि प्राइम मेरिडियन से किस डायरेक्शन में है? East. Eastern Hemisphere. Eastern Hemisphere. And Eastern it is Hemisphere. over 97 degree
25 minutes. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, This sir. is what the latitudinal extension, and this is called as longitudinal extension. ठीक, अब यदि यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखी जाए और ये एक्सटेंशन देखा जाए, ठीक है, तो दिखाई देने में, किसमें दिखाई देने में, यदि इंडिया का मैप देखें तो ऐसा लगेगा कि कौन सा बड़ा है, नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है कि कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और ऐसा लगता है ईस्ट से वेस्ट कम है, परंतु यदि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ये माइनस करें और ये माइनस करें, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अराउंड कितना आता है, अराउंड कितना आता है, 30 डिग्री. 30 degree. यानी देखने पे, आंखों से देखने पे तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, वेस्ट टू ईस्ट, परंतु दोनों का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है, सेम है, कैसा है, सेम. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड. Okay, if someone has given me the message, sir, my network is too slow, that's why I disconnected. Kia Reddy. Okay, thank you. Is she present right now or she got disconnected again? ठीक है, फाइन. चलिए, इतना आया समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, व्हाट आर द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. सो यदि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा तो आपको कितना लिखना है, द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और ये हो गया longitudinal extent. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, then next is Tropic of Cancer. So, the Tropic of Cancer divides the country almost two equal parts. ठीक है? So, Tropic of Cancer इंडिया को क्या करता है, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अभी फॉर ड्राइंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आई एम रबिंग दिस पोर्शन. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ करने के लिए आई एम रबिंग दिस पोर्शन. Sir, maps will be coming this time. बेटा मैप क्वेश्चन आर नॉट कमिंग. Okay, sir. Okay, only the theoretical questions are there. Is it clear? Yes, sir. Now, so Tropic of Cancer. Now let us see where is the Tropic of Cancer. Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because ये इसमें जूम की लिमिट खत्म होगी, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलिए. ना सो ये जो है दिस इज व्हाट 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है ना. तो हमारा कितना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट. सो 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो लगभग यहां से क्रॉस होता है. ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. Sir. ठीक, तो
इसको यदि देखें तो ये इंडिया को नियरली कितने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, क्लियर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो इलाका है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? Tropical zone. ट्रॉपिकल जोन। और इसके ऊपर जो है ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन। व्हाट डज इट कॉल्ड? Subtropical zone. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द मैप, इक्वेटर के आधा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लाई करता है, आधा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है। इसलिए दिस शुड बी कॉल्ड एज अ ट्रॉपिकल जोन नीचे की तरफ, और ऊपर क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल जोन। ऊपर की तरफ क्या होता है? Subtropical zone. Subtropical zone. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अनुष्का दुबे, इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, गुड। जस्ट अ मिनट, लेट मी सेंड अ मैसेज टू पिया। चलिए, ठीक, गॉट इट बेटा? Yes, sir. चलिए, सो कम बैक टू द पोजीशन। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाउ व्हाट इज द डिग्री लैटिट्यूड? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, divides India, that is country, into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. So Andaman and Nicobar Islands lie in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands lie in Arabian Sea. ठीक है, ये किसमें? बे ऑफ बंगाल में, और ये किसमें? अरेबियन सी में। ठीक है ना। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, यहां पर एक दिया है इंदिरा पॉइंट। तो व्हाट इज दिस सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन? अब दोनों चीजों को बहुत ध्यान से यहां पर देखना, ठीक है ना। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया बनाया था, ध्यान है? कन्याकुमारी में कितना? Yes, sir. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो वो कहां पर है? यहाँ। अब ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, दिस इज मेनलैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि। परंतु मेनलैंड ऑफ इंडिया के अलावा, ठीक है, मेनलैंड ऑफ इंडिया के अलावा, ठीक है, इंडिया में और क्या शामिल है? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिया में और क्या शामिल है? Andaman and Andaman and Nicobar Islands. गुड। ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसका Lakshadweep also covered. Andaman बेटा लक्ष्य- पहले जरा अंडमान एंड निकोबार पे समझ लो, ठीक। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहां से स्टार्ट हुए, ठीक है। अब ये जो है इतना, और फिर यहां से थोड़ी सी डिस्टेंस समुद्र में बढ़ जाती है, और फिर से ये आइलैंड ग्रुप्स आ गए। तो दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये सारे के सारे पास में हैं, ये हो गया अंडमान ग्रुप का हिस्सा, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस है, फिर इधर से लगातार आ गए, तो ये हो गया निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा। अब इसमें ये जो लास्ट का पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये इंडिया का सदर्नमोस्ट पॉइंट है। किस सेंस में कि मुख्य भूमि छोड़कर, क्या छोड़कर, मुख्य भूमि छोड़कर, है ना, मेनलैंड को छोड़कर इंडिया के कब्जे में जो भी हिस्सा है उसका सबसे सदर्नमोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। एंड दिस इज नोन एज, इसको क्या बोला, इंदिरा पॉइंट। व्हाट डज दिस कॉल्ड, Indira Point. Indira Indira Point. Point. Indira Point. What does it called? Indira. Indira Point. Indira Point. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। sir, who decides that these islands are of India and these islands are of another country? And sir, it is in free in sea, so someone can't just capture it because it is free in like somewhat distance from India. Sandhya, what happens? Actually, which part of the island or which we can say which geographical location on the world map lies in which country? भाई संसार में कितना हिस्सा किस देश का? अच्छा बेटा, it is 8:41 संध्या, है ना? So if we start discussing on this one, so it may have long time, ठीक है? So I will join you either today evening or otherwise we'll discuss on this point tomorrow, ठीक है? Yes, sir. अच्छा चलिए, Okay, sir. अभी before the final binding, as far as concerned about examination, ठीक है? Now all of you have to do the reading of the chapters as well as learning the question answers which I gave in the form of notes. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I am winding up the session here only. So that's all for today live class, friends. So thank you. Have a nice day. And please Thank you, sir. do the preparation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.